integrated rate law and zero order reaction. Here we need to understand first what is integrated rate law, and then we will derive it for the zero order reaction. See, if I write a chemical reaction, a hypothetical chemical reaction where uh, X moles of reactant combine or react to give product. For such reaction, if I write the rate law, how I can write the rate law? Rate of reaction is change in concentration dr by dt divided by respective stoichiometric coefficient 1 upon x, right? This is the instantaneous rate expression is equal to rate law. क्या कहता है? Rate law is rate of reaction is equal to rate constant into concentration of reactant raised to n, where n is equal to order of reaction. This type of expression is called a differential rate equation. Above expression is called above expression of rate is called differential equation and these differential equations are not very convenient to find the instantaneous rate, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमें रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें पहले कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, फॉर विच वी नीड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा. उसके बाद जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है उसमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा उससे आपको मिलेगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. So this is not very convenient and effective method to find the instantaneous rate. तो हमने इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करने के लिए दूसरा मेथड निकाला. हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं. रेट एक्सप्रेशन obtained by integrating above equation is called integrated rate law. Integrated rate law. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, किसी भी रिएक्शन के लिए हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन करने के बाद जो रेट का एक्सप्रेशन आएगा हम उसको कहेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ. ठीक है, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं. सपोज रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? ठीक है,
So zero order reactions are those in which rate of reaction is independent. Zero order reactions are those in which rate of reaction is independent of concentration of reactant. मतलब आप वहां पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी इंक्रीज करो, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा. So we can write zero order reactions are those in which rate of reaction does not depend on the concentration of reactant, So if I write a hypothetical chemical reaction, X moles of R react to give product. So here rate will be equal to minus dr by dt. Suppose we solve it for 1 mole. So R, reactant R gives product. So here minus dr by dt is equal to rate constant into concentration of reactant raised to n. For zero order reaction, n is equal to 0. So minus dr by dt is equal to k into r raised to 0, or r raised to 0 is 1, so I can write minus dr upon dt is equal to k. मतलब रेट इज कांस्टेंट. ये बन गया. ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर. दिस एक्सप्रेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर. ठीक है. नाउ on integration of equation 1, we can rearrange it. Minus dr upon dt is equal to k, or I can write minus dr, or we can write it as dr is equal to minus k dt. On integration, we get r is equal to minus kt plus c. Here c is equal to integration constant. इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए, सपोज आई राइट एट टाइम
T इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, R इज इक्वल टू R0, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आई कैन राइट R0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू, जब कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल के इक्वल है, इसका मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम 0, प्लस C, तो C इज इक्वल टू R0. So we can write R is equal to माइनस के टी प्लस सी होता है। अभी हमारा जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन आया है, वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, और C का वैल्यू कितना है, R0, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0. दिस इज कॉल्ड integrated rate law for zero order reaction, right? This is integrated rate law for zero order reaction. Now one more thing, if we want to find a half life for the reaction, what is half life? Half life is a duration in which concentration of reactant becomes half of initial. So what we do is, we know that for zero order reaction R is equal to minus KT plus R0. If T is equal to T half, अगर मैं कह रहा हूं रिएक्शन का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो हाफ लाइफ है, इसका मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी, that final concentration will be equal to half of initial concentration. Agreed? So I can write final concentration is equal to half of initial concentration, R is equal to R0 by 2, is equal to minus KT plus R0, or I can write KT is equal to R0 minus R0 by 2, or I can write K is equal to R0, यहां पे ड्यूरेशन है हाफ लाइफ, तो R0 माइनस, लेट्स राइट इट दिस वे, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू R0 माइनस हाफ ऑफ R0, मतलब बचेगा क्या आपके पास, R0 by 2, और इस K को क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू R0/2K. This is half life for zero order reaction. इसका मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द initial concentration because K is constant. तो बेसिकली जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन हाफ होती जाएगी पहले से, हाफ लाइफ भी पहले से हाफ होती जाएगी. इसका मतलब सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 1 मोलर से हाफ मोलर होने में, 1 मोलर से हाफ मोलर होने में सपोज टाइम लगा आपको 10 सेकेंड. तो हाफ मोलर से 0.25 मोलर होने में कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल है, पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 से 0.5 हुआ, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया. तो अब जो नेक्स्ट हाफ लाइफ है वो भी पहले की हाफ हो जाएगी, मतलब 10 सेकेंड की जगह कितना लगेगा? 5 सेकेंड. अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.25 है तो इससे हाफ होने में 0.125, इसमें कितना टाइम लगेगा? इसका भी हाफ, मतलब 2.5 सेकेंड. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड कर सकते हो. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या लिया? R इज इक्वल टू -KT प्लस R0. ये हमने डेराइव किया. डिफरेंशियल इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए जो है, जीरो ऑर्डर के लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हमने रीअरेंज किया और रीअरेंज करके इसको इंटीग्रेट किया, फिर इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड किया, तो हमें मिला जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ. तो ये है हमारे पास जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ. इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं KT इज इक्वल टू R0 माइनस R, और इसको लिख सकते हैं K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T. या फिर हम इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन K. तो इक्वेशन A, इक्वेशन B एंड इक्वेशन C. इक्वेशन A, B and C are integrated rate law for zero order reaction. ठीक है. Now from this equation we can say is compare equation A with straight line equation. Y is equal to mx plus c. तो जब इक्वेशन ए को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, एक्स पे आएगा टाइम टी, और स्लोप m इज इक्वल टू माइनस के। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसका स्लोप होगा नेगेटिव, और उसका जो इंटरसेप्ट c है वो इंटरसेप्ट c होगा इक्वल टू r0। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसा आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें एक्स वाई एक्सिस पे लेना है कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस पे हमें लेना है कॉन्सेंट्रेशन, एक्स पे हमें लेना है टाइम। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा उसका वैल्यू होगा r0। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द integrated rate law of zero order reaction. Now, if we say from equation C, equation C क्या है, T is equal to R0 minus R upon K. If T is equal to T half, if T is equal to T half, then अगर ड्यूरेशन हाफ लाइफ है मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो गया, तो आई कैन राइट T half is equal to R0 अपॉन 2K। ठीक है, इसका मतलब हाफ लाइफ is directly proportional to initial concentration। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट करेंगे हाफ लाइफ के साथ, एज यू टेक मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इन द बिगिनिंग, 1 मोलर की जगह 2 मोलर लिया या 2 मोलर की जगह 3 मोलर लिया, 3 मोलर की जगह 4 मोलर लिया, जब आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा लोगे तो उसको हाफ होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, द हाफ लाइफ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो हमने डिराइव कर लिया, ठीक है, अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, रिएक्शन जीरो ऑर्डर की क्या होती है, कैसे हो सकती है रिएक्शन जीरो ऑर्डर की। ठीक है, यू कैन राइट डाउन एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, decomposition of gases on the solid surface, decomposition of gases on the solid surface are also zero order reactions. Example, decomposition of ammonia on platinum surface. तो ये जो रिएक्शन है 2NH3 over platinum surface gives N2 plus 3H2। तो ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन एट हाई प्रेशर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा,
And third example, you can write photochemical reactions are zero order reaction, like H2 gas plus Cl2 gas in presence of sunlight gives HCl. ये जो रिएक्शन है ये भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। स्टिल वी आर नॉट कन्विंस्ड कि जब ज्यादा रिएक्टेंट लोगे तो रिएक्शन का रेट तो बढ़ना चाहिए, जबकि जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा है, जीरो ऑर्डर में अगर हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो क्लियर आइडिया है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आइडिया है, रेट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन को आप कितना भी बढ़ाओ रेट कांस्टेंट रहेगी। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? जब ज्यादा रिएक्टेंट ले तो रिएक्शन की रेट बढ़नी चाहिए ना। आप एक एग्जांपल समझो, ये एक टिकट विंडो है, दिस इज वन टिकट विंडो जहां से लेट्स से मूवी के टिकट्स इशू होते हैं। दिस इज द विंडो नंबर 1, दिस इज विंडो नंबर 2, दिस इज विंडो नंबर 3, दिस इज विंडो नंबर, 4 विंडो है, 1 2 3 एंड 4। चारों से टिकट्स इशू होते हैं, ठीक है। अभी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कैपेसिटी और द एफिशिएंसी ऑफ ईच विंडो इज अप्रोक्सीमेटली 1 टिकट पर मिनट। इनमें से सभी विंडो 1 मिनट में 1 टिकट इशू कर सकती है। द फर्स्ट गाय केम, टेक द टिकट, तो 1 मिनट में 1 टिकट इशू हो गया। सेकेंड गाय केम, अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, एक साथ 2 बंदे आ गए तो क्या होगा, दोनों को 1 ही मिनट में टिकट इशू हो गया, मतलब रेट बढ़ गई ना। पहले 1 मिनट में 1 टिकट इशू हो रहा था, अभी 1 मिनट में 2 टिकट इशू हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट टाइम 3 गाइस केम टुगेदर, एक साथ तीनों लोग आए, 3 अलग अलग लोग आए, तो एक फर्स्ट विंडो पे चला गया, एक सेकंड पे, एक थर्ड पे, टिकट जल्दी इशू हो जाएंगे। अब 1 मिनट में 3 टिकट इशू हो रहे हैं, टिकट इशू होने की रेट और ज्यादा बढ़ गई। ये तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट बढ़ रहा है रेट बढ़ रही है। नेक्स्ट टाइम 4 गाइज केम टुगेदर, 4 लोग एक साथ टिकट लेने आ गए। अब क्या होगा, टिकट देने की स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब 1 ही मिनट में 4 टिकट इशू हो जाएंगे। देन मैनी गाइज केम टुगेदर, मैनी गाइज केम टुगेदर, एक साथ आ गए बहुत सारे लोग टिकट लेने। अब क्या होगा, अब ऑल विंडोज आर ऑक्यूपाइड, जब ये 4 जाएंगे तो बाकी के 4 आएंगे, मतलब 1 मिनट में कितने टिकट इशू होंगे, 4। फिर जब वो 4 चले जाएंगे तो फिर नेक्स्ट 4 आ जाएंगे, फिर 1 मिनट में कितने टिकट इशू होंगे, 4। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब ये सरफेस पूरी सैचुरेट हो गई, जब ये सरफेस पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगी, उसके बाद आप कितना भी रिएक्टेंट ऐड करो रिएक्शन की रेट में फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन की रेट कांस्टेंट हो जाएगी। देन इवन इफ द 1000 पीपल केम टुगेदर टू बाय द टिकट, in 1 minute only 4 tickets will be issued, right? So same thing happens in case of ammonia. अमोनिया के केस में अगर आप इनिशियली देखोगे 2NH3 gives on platinum surface gives N2 plus 3H2,
ये प्लैटिनम का सरफेस है। पहले थोड़ा हमें अमोनिया का प्रेशर कम रखा है, तो कम अमोनिया डीकंपोज हो रही है, धीरे धीरे डीकंपोज हो रही है। फिर हमने अमोनिया का प्रेशर बढ़ा दिया, तो अब डीकंपोजिशन भी बढ़ गया, मतलब रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो गई। फिर हमने और ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, तो और ज्यादा सरफेस ऑक्यूपाई हो गई, रिएक्शन की रेट और ज्यादा फास्ट हो गई। लेकिन फिर पूरी सरफेस ऑक्यूपाई हो गई। अब आप अमोनिया का कितना भी प्रेशर बढ़ाते जाओ, जब तक एक अमोनिया हटेगा नहीं तब तक नया अमोनिया आ नहीं सकता। मतलब अब थोड़ी देर बाद हाई प्रेशर पे पहुंचने के बाद रिएक्शन ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया हैज बिकम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जब आप प्लेटिनम की सरफेस पे या किसी सॉलिड की सरफेस पे किसी गैस को डीकंपोज करते हो, तो इनिशियली वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, तो थोड़ी देर के बाद रिएक्शन, जब पूरी सरफेस ऑक्यूपाई हो गई, तो अब रिएक्शन जीरो ऑर्डर की बनी। अब आप नया रिएक्टेंट ऐड करोगे तो भी रिएक्शन की रेट नहीं बढ़ेगी। तो हम इसको मैथमेटिकली शो करते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली हमने देखा दैट रेट इज इक्वल टू के K1NH3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K2NH3। रिएक्शन जीरो ऑर्डर की नहीं है, रिएक्शन अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। धीरे धीरे अमोनिया का प्रेशर बढ़ा, एट वेरी हाई प्रेशर ऑफ अमोनिया, at very high pressure of ammonia, K2NH3 will become very high compared to 1. Then I can write 1 plus K2NH3 is nearly equal to K2NH3. तो फिर क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K1NH3 डिवाइडेड बाय K2NH3। NH3 से NH3 कैंसिल हो गया, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब रिएक्शन की रेट क्या हो गई, कॉन्स्टेंट, लेकिन कब, एट वेरी वेरी हाई, राइट। So basically what we are saying is, see, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन है किसी भी रिएक्शन के लिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस एक्सप्रेशन को जो इंटीग्रेट करके एक्सप्रेशन आता है, उससे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट कन्वीनियंट और नॉट वेरी एफिशिएंट to find the instantaneous rate of reaction. So we integrate this equation. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है n की वैल्यू जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो। यहां जीरो सब्स्टिट्यूट किया, वी गॉट दिस इक्वेशन। r रेज टू जीरो मतलब 1, वी गॉट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, इक्वेशन 1 को हमने रीअरेंज किया और रीअरेंज करके इंटीग्रेशन किया। तो dr इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इसका इंटीग्रेशन प्रोडक्ट आता है r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने अज्यूम किया दैट इनिशियल व्हेन टाइम जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब क्या होता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां सब्स्टिट्यूट किया, आर की जगह सब्स्टिट्यूट किया आर जीरो, इसका मतलब टाइम जीरो। तो सॉल्व करके आया इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू आर जीरो।
तो C की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया R0, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। ये है इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। इसको रीअरेंज करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। और K और T को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं इसका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है द ड्यूरेशन इन विच द कॉन्सेंट्रेशन बिकम हाफ ऑफ इनिशियल। ठीक है, तो हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन है R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0। इसको रीअरेंज किया और इसमें T की जगह सब्स्टिट्यूट किया T हाफ, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम हाफ ऑफ इनिशियल। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया T की जगह T हाफ, तो R की जगह हो जाएगा R0/2। इसको सॉल्व करके हमें मिलता है हाफ लाइफ इज इक्वल टू R0/2K। इसका मतलब हाफ लाइफ इज इनिशियल प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है और हाफ लाइफ 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड के बाद कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई। अब 0.5 से 0.25 होने में 10 सेकेंड नहीं लगेंगे। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले से हाफ है, तो 0.5 से 0.25 होने में पहले से आधा टाइम लगेगा। फिर 0.25 से 0.125 होने में उसका भी आधा टाइम लगेगा, क्योंकि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो आया इक्वेशन ए, और इक्वेशन ए को रीअरेंज करके हमने बनाई बी और सी। तो जब हम इक्वेशन ए को रीअरेंज करते हैं, सॉरी इक्वेशन ए को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट होता है इक्वल टू सी, इंटरसेप्ट होता है इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, एम का वैल्यू कितना है -K, तो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन with negative slope. This is very important question for exam. Concentration time graph straight line with negative slope is for zero order reaction. और अगर हाफ लाइफ का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा हाफ लाइफ भी बढ़ेगा। ग्राफ बिटवीन half life and initial concentration for zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है? जिनमें रिएक्शन की रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। व्हाट आर द एग्जांपल? एग्जांपल्स आर नंबर 1 enzyme decomposition, right? Reaction, enzyme catalyzed reaction, decomposition of gases on solid surface, जैसे अमोनिया का प्लेटिनम के ऊपर decomposition, and photochemical reactions like H2 plus Cl2 in presence of sunlight give HCl. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। ठीक है, so this is about the zero order kinetics. Please watch this very carefully and prepare proper notes for this topic. Same topic, similar topic and derivation we will do for the first order kinetics.